Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video we are going to discuss most important MCQs of electricity. So moving to our question. So question number 1 we have the rate of flow of electric charge is. Basically we are talking about rate of flow of electric charge. So option A is electric potential, option B is electric conductance, option C is electric current, option D is none of these. So our right answer is electric current. तो आपसे ये बात कर रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. रेट का मतलब होता है समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम. देयरफॉर चार्ज अपॉन टाइम इज डिफाइंड एज करंट. सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. Which of the given is the SI unit of electric current? Option A is ohm, option B is ampere, option C is volt, option D is Faraday. So our right answer is option B, ampere. Therefore SI unit of electric current is known as ampere. Electric current is denoted by I and it is defined as charge upon time. Therefore SI unit of charge is coulomb and SI unit of time is second. So coulomb per second is the SI unit of electric current, which is also known as ampere. By another name it is known, which is known as ampere, denoted by capital A. So question number 3 we have the instrument used for measuring electric current. तो आपसे पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा है. ऑप्शन ए इज आमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी इज वाटमीटर, ऑप्शन सी इज वोल्टमीटर, ऑप्शन डी इज नन. तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. तो आपका आमीटर है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. आपका आमीटर का पिक्चर है आपका. नेक्स्ट आपका ये सेकेंड वाला जो है आपका गैल्वेनोमीटर है. तो गैल्वेनोमीटर जनरली आपको सेंसिटिव करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, सेंसिटिव करंट के लिए. और एमीटर आपको जनरली लार्ज करंट के लिए यूज किया जाता है, लार्ज करंट को मेजर करने के लिए. ये सेंसिटिव करंट मतलब स्मॉल करंट आपका मिली एम्पेयर में, माइक्रो एम्पेयर में, नैनो एम्पेयर में, इन सब का मेजरमेंट के लिए आपको गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है. When electric current is passed, electrons moves from option A is high potential to low potential, option B is low potential to high potential, option C is in the direction of current, option D is none of these. So our right answer is option B, low potential to high potential. Basically in this question we are talking about electrons. So this is the positive terminal of battery, so it is called high potential, and this is called low potential. So electrons motion is from low potential to high potential, and current moves from high potential to low potential. So moving to our question number 5. The conventional current flows from positive terminal to negative terminal. Option A. Option B is negative terminal to positive terminal. Option C is from low potential to high potential. Option D is none of these. So our right answer is option A, positive terminal to negative terminal. Here this question, in this question we are talking about conventional current. So conventional current is from high potential to low potential. So it is from positive terminal of a battery to negative terminal of battery. So moving to our question number 6. The device which is used to measure sensitive current is. So in this question we are talking about the device which is used for measuring sensitive current. Option A is ammeter, option B is voltmeter, option C is galvanometer, option D is wattmeter. Our right answer is option C, galvanometer. So for measuring current we use ammeter and also galvanometer, but ammeter is not used to measure sensitive current. For measuring large current we are using ammeter. For measuring small current we are using galvanometer, or we can say that it is sensitive current. So you can see this, the diagram of galvanometer. So moving to our question number 7. So in question number 7, a battery of 12 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. How much current would flow through each resistor? Here it is asked that how much current would flow through each resistors. So first we will solve, then we will tick the options. So these all resistors are connected in series. ये सारा रेजिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड है. सो फर्स्ट रेजिस्टर इज 0.2 ओम, नेक्स्ट सेकेंड वन इज 0.3 ओम, नेक्स्ट 0.4 ओम, नेक्स्ट 0.5 ओम एंड लास्ट वन इज 12 ओम. तो ये आपका
5 रेजिस्टर्स है, कनेक्टेड है अक्रॉस 12 वोल्ट बैटरी। ये आपका 12 वोल्ट बैटरी सोर्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। देयरफॉर आपसे पूछा है कि ईच रेजिस्टर्स में कितना करंट होगा। तो आप जानते हैं कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, देयरफॉर सेम करंट विल फ्लो थ्रू 0.2 ohm, next same current will flow through the 0.3 ohm, same current from 0.4, same current for 0.5 and same current for 12 ohm also. Therefore we have to first calculate R equivalent. These all are connected in series, so we have to calculate R equivalent of this circuit. Therefore R equivalent can be given by R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Therefore R1 is 0.2 ohm plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 and last one is 12 ohm. So on adding you will get this value 13.4 ohm. Therefore R equivalent equal to 13.4 ohm. And we also know that from Ohm's law V equal to IR. Therefore I can be given as V upon R. तो हमारे पास V का वैल्यू दिया हुआ है ना, 12 वोल्ट हमारा गिवन है। R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं जो कि आपका 13.4। On solving this equation you will get the value of 0.895 ampere. So this is our right answer, which is in option A. You can see this in option A. So moving to our question number 8. So in question number 8, the amount of work done in joules when one unit of electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is known as. Basically, work done upon charge is asked. Work done upon charge is asked. So work done upon charge is known as potential difference. Therefore, you can see where is the potential difference. It is denoted by V. So option A is electric current, option B is electric resistance, option C electric conductance, option D is potential difference. So our answer is potential difference. So amount of work done per unit charge is known as potential difference. Moving to our next question. In question number 9 we have which of the following equation is valid for potential difference. इनमें से कौन सा इक्वेशन आपका पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वैलिड है? So option A is Q equal to W into V, W equal to Q into V. Option C is V equal to W by Q and option D is both B and C. So our right answer is both B and C, option number D. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. Since potential difference is denoted by V and it is defined as work done upon charge. Therefore ये आपको इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं ये आपका किस ऑप्शन में है. ये आपका वर्क डन अपॉन चार्ज आपका ऑप्शन नंबर सी में है. आप इसको रीअरेंज करिएगा. देयरफॉर वर्क डन कैन बी गिवन एज V इंटू क्यू. देयरफॉर वर्क डन का भी आपको फॉर्मूला आ गया. वर्क डन का इक्वेशन आपका क्या है? Q इंटू V. तो ये आपका इक्वेशन आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी. सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज. इनमें से कौन सा आपको वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, वर्क डन इनटू चार्ज, वर्क डन इनटू टाइम अपॉन करंट, वर्क डन इनटू चार्ज अपॉन टाइम. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो आपका क्या है? वोल्टेज के बारे में पूछा है. देयरफॉर वोल्टेज इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज and we know that current is defined as charge per unit time. Therefore इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे. therefore charge can be written as I into T. Here I is current and T is time. Therefore charge can be written as current into time. And we know that potential difference is work done upon charge. Therefore this work done को हम लोग work done लिख सकते हैं. चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे? चार्ज को हम लिखेंगे आपका करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम. तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा इक्वेशन मिल जाएगा वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, ऑप्शन नंबर ए. सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 11. सो इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी इज नन.
So our right answer is option number A, scalar quantity. Electric potential or potential is defined as work done upon charge. So it is, charge is also scalar quantity, and also work done is also a scalar quantity. Therefore, work done per unit charge is also a scalar quantity, that is potential difference. So moving to our question number 12. So in question number 12, a voltmeter is used to find the potential difference in any circuit. Which of the statement given below is true? A voltmeter is a high resistance instrument and is connected in series. A voltmeter is low resistance instrument and is connected in series. A voltmeter is a high resistance instrument and is connected in parallel. A voltmeter is low resistance instrument and it is connected in parallel. So our right answer is option number C. Voltmeter is high resistance instrument and is connected in parallel. आपका ऑप्शन नंबर ए और बी आपका ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा वोल्टमीटर हमेशा, वोल्टमीटर का सिंबल ये है, सर्किट सिंबल ये है आपका। वोल्टमीटर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, चाहे वो रेजिस्टर सोर्स के क्रॉस पैरेलली लगाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा कि यहाँ सीरीज सर्किट का बात किया गया है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी और डी में आपका, दोनों में आपका पैरेलल सर्किट के बारे में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी से आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि वोल्टमीटर आपका हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है, लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 13. So in question number 13, the relation between potential difference and current is given by. So option A is V is directly proportional to I, option B is V is inversely proportional to I, option C is both A and B, option D is none. So our right answer is option number A. Potential difference V is directly proportional to I, and this is also known as Ohm's law. So moving to our question number 14. The relation between potential difference V and current I was discovered by. Option A is Newton, option B is Ampere, option C is Ohms, option D is Volt. So it was discovered by Ohm. So the relation between potential difference V and current I, that is directly proportional. V is directly proportional to I. So this was discovered by Ohms, and it is known as Ohm's law. So moving to our question number 15. The SI unit of resistance is. तो आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए इज न्यूटन, ऑप्शन बी इज ओम, ऑप्शन सी इज वाट, ऑप्शन डी इज जूल। सो हियर आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। सिंस फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR होता है, therefore R can be written as V upon I. V आपका SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, डिनोटेड बाय V। करंट का आपका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी वोल्ट पर एम्पियर आपका SI यूनिट हो गया रेजिस्टेंस का, विच इज ऑल्सो नोन एज ओम। सो ये वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम से भी जानते हैं। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. The hindrance presented by material of the conductor to the smooth passing of electric current is known as. Option A is resistance, option B is conductance, option C is inductance, option D is none of these. So here our right answer is option A, resistance. So here it is talking about hindrance. Hindrance मतलब opposition. hindrance का मतलब क्या होता है? आपका opposition होता है, ठीक है ना। इसको resistance बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर के द्वारा या किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना अपोजिशन प्रोवाइड करेगा या हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 17. So in question number 17, which of the given statement is not true regarding the electrical setup for the verification of Ohm's law? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉट ट्रू है? आप यहाँ मार्क कर लीजिए, यहाँ नॉट ट्रू के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन ए इज द वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द नोन रेजिस्टेंस, द ammeter is connected in series circuit, the rheostat can only increase the resistance in the electric circuit, and option D is single key is used to switch on or off the electric circuit. So our right answer is option number C, the rheostat can only increase the resistance in the electric circuit.
तो रियोस्टेट का क्या बोलते हैं हम लोग, रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं हम और रेजिस्टेंस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओनली लगा हुआ है आपको, इसीलिए यहाँ आपका आंसर ये नॉट ट्रू हो जाएगा। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। So in question number 18, on which of the given factor resistance does not depend, यहाँ पर आप देख सकते हैं does not depend का बात किया गया है। So option number A is length of the conductor, option B is area of cross sections, option C is temperature, and option D is density. So our right answer is option D, density. Therefore resistance of the conductor depends on length, which is directly proportional. Resistance of the conductor is inversely proportional to area of cross sections, and resistance of the conductor is also dependent on temperature. So it is not dependent on density. So our right answer is option number D. So moving to our question number 19. The length of the conductor and its radius is increased twice. How the resistance will change? So in question number 19 it is given that लेंथ आपका और रेडियस इंक्रीज हो गया है ट्वाइस से। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा इनिशियल लेंथ L1 जो है L ही था, हमारा L2 लेंथ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ L हो गया। नेक्स्ट हमारा रेडियस इंक्रीज हो गया है, तो हमारा इनिशियल R1 रेडियस हमारा R था, देयरफॉर एरिया कैन बी रिटन एज क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, ये हमारा A1 हो जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली हमारा इंक्रीज रेडियस में क्या हो गया, ट्वाइस हो गया है, तो R2 हमारा 2R हो गया है, देयरफॉर एरिया कैन बी रिटन एज पाई R स्क्वायर होता है, तो ये हो गया पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर, देयरफॉर A2 कैन बी रिटन एज 4R स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया A2 हमारा क्या हो गया, एरिया हमारा 4 टाइम्स इनिशियल एरिया हो गया, ठीक है ना, इनिशियल एरिया हमारा A1 था, तो ये 4 टाइम्स A1 हो गया A2, ठीक है। तो हमको क्या करना है इस केस में, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये हमारा रेजिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, R1 हमारा हो जाएगा रो एल अपॉन रो 1 L1 अपॉन A1, हमारे यहाँ मटेरियल चेंज नहीं हुआ इसलिए हमारा रो सेम रहेगा, देयरफॉर रो L अपॉन A1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सिमिलरली हम R2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं रो 2 L2 अपॉन A2, ठीक है। तो रो 2 हमारा रो के ही बराबर है, रो 2 हमारा क्या है, रो के बराबर है। नेक्स्ट हमारा L2 क्या है, हमारा L2 हमारा क्या हो गया है, 2 टाइम्स L हो गया है, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस A2 हमारा क्या है, 4 टाइम्स A1 है, देयरफॉर R2 कैन बी गिवन एज, ये 2 से 2 कट गया, रो L अपॉन 2A1 और 2A जो भी आपको मान लिए हैं इनिशियल में, एरिया A माने हैं तो 2 टाइम्स A हो जाएगा, यहाँ भी A आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R1 हमारा निकल गया, R2 निकल गया है, हमें रेडियस बोल रहा है कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो देयरफॉर R2 कैन बी रिटन एज रो L अपॉन A2 इंटू 1/2, हम ये 2 को 1/2 करके लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये आपका R1 का वैल्यू है, देयरफॉर R2 कैन बी गिवन एज R1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर सी में है, रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 20। Materials having non-linear voltage current relationships are option A ohmic, option B is non-ohmic, option C is battery, option D is none. So our right answer is option number B. ऐसा मटेरियल जिसमें आपका नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप होता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग ओमिक बोलते हैं। यानी ओम्स लॉ क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इफ V विल इंक्रीज I विल इंक्रीज, इफ V विल डिक्रीज I विल डिक्रीज। जो आपका ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है वो आपका नॉन ओमिक हो गया। यहाँ पर आपको नॉन लीनियर के बारे में बात किया गया है, जो भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है वहां पर लीनियर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका नॉन लीनियर वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप का बात किया था, इसीलिए यहाँ आपका राइट आंसर नॉन ओमिक होगा। सो इन क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव इफ R1 and R2 be the resistance of the filament of 40 watt and 60 watt bulb respectively operating at 220 volt then, तो यहाँ जनरली आपको R1 और R2 के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा होगा आपका और कौन सा रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो आपको यहाँ दो केस दिया हुआ है कि आपका बल्ब का जो होता है फिलामेंट उसका रेटिंग दिया है, एक का है 40 वाट, दूसरे का है आपका 60 वाट और दोनों ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट पर।
तो हम लिख सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दो केस में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों केस में हमारा सेम हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है दोनों के केस में। तो हम ये लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 220 वोल्ट है। ये हम जूम कर सकते हैं केस, हाँ ये हमारा कैसा है, केस फर्स्ट है। ये हमारा क्या है, केस 2 है। केस फर्स्ट का रेटिंग हमारे पास क्या दिया है, पावर का रेटिंग हमारा 40 वाट बल्ब यूज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसको P1 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर केस 2 को हम P2 एज्यूम कर लेते हैं। तो P2 हमारा कितना वाट है, 60 वाट का बल्ब है। तो ये हमारा बल्ब 1 के लिए है, यहाँ पर है ये हमारा बल्ब 2 के लिए है। हम मान लेते हैं लेट R1 बी रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, सिमिलरली R2 जो होता है हमारा रेजिस्टेंस है ऑफ बल्ब 2 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए। देयरफॉर पावर क्या होता है हमारा, पावर जो होता है वो होता है हमारा V²/R होता है। ये हमारा पावर का जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है, हमारा पावर का जनरल फॉर्मूला है। हम पावर को क्या लिख सकते हैं, हम पावर को लिख सकते हैं P1 हमारा जो हो जाएगा वो V1 का स्क्वायर अपॉन R1 हो जाएगा। ऑलरेडी हमें P1 क्या है, P1 हमारा दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं 40 वाट है। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू V1 का स्क्वायर यानी 220 का होल स्क्वायर अपॉन R1। तो यहाँ से हम R1 निकाल सकते हैं। तो R1 हमारा क्या आ जाएगा, R1 हमारा आ जाएगा 220 का स्क्वायर इंटू 40 आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर रेजिस्टेंस का 1210 ओम। तो यहाँ हमारा R1 क्या आ गया, R1 जो होता है हमारे बल्ब 1 के क्रॉस रेजिस्टेंस है वो हमें निकल चुका है कि हमारा 1210 है। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरह हम P2 को भी लिख सकते हैं। P2 हमारा क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन R2। यहाँ V1 और V2 हमारा सेम है, तो हम P2 हमारा क्या गिवन है, P2 हमारा 60 वाट दिया हुआ है। तो हम इक्वेट कर देंगे 60 इक्वल टू V2 का स्क्वायर यानी V1 और V2 तो सेम है, तो ये 220 का होल स्क्वायर अपॉन R2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग R2 निकाल सकते हैं कि R2 हमारा आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 60। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ ऑलरेडी हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे, तो सिंप्लीफाई कर कर हमारा आंसर आ जाएगा 806.66 ओम। तो ये हमारा R2 आ गया। तो हमारा R2 आ गया 806.66 ओम। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, R1 और R2 को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ऑन कंपेयरिंग R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हम देख लेंगे ये हमारा R1 इज ग्रेटर देन R2 कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ए ऑप्शन है, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंसुलेटर के बारे में बात किया गया है। ऑप्शन ए इज हाई, ऑप्शन बी इज लो, ऑप्शन सी इज जीरो एंड ऑप्शन डी इज इन्फिनिटली हाई। देयरफॉर राइट आंसर इज इन्फिनिटली हाई। किसी भी इंसुलेटर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है आपका वेरी वेरी हाई होता है, ठीक है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं वेरी वेरी हाई होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं infinitely high. Moving to our question number 23. On which of the given parameters a specific resistance depends? Option A is length of the wire, option B is area of cross sections of the wire, option C is current passing through it, temperature and material. So our right answer is temperature and material. Therefore specific resistance को हम लोग resistivity बोलते हैं, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है जो कि सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अमीटर एंड वोल्टमीटर? इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग अमीटर और वोल्टमीटर के केस में? Option A is ammeter is connected in series and voltmeter in parallel. Option B is ammeter is connected in parallel and voltmeter in series.
Option C is both are connected in series. Option D is both are connected in parallel. So our right answer is option number A. So ammeter बेसिकली करंट मेजर करता है आपका, इसका सर्किट सिंबल इस तरह होता है। वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सर्किट सिंबल इस तरह से दिखाते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, और इसको हम लोग एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 25। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज, यहां पर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। अगर आप 4 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट कर देखते हैं तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है। तो हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। आपका 4 ओम, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी आपका 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस को हम लोग क्या किए हैं, पैरेलली कनेक्ट किए हैं, पैरेलली कनेक्ट किए हैं। और आपसे क्या पूछा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, आपसे पूछा है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है ना, अक्रॉस ए बी पूछा है। Therefore, when resistors are connected in parallel, therefore their formula can be given as 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4। यहाँ R4 ही है, इसलिए R4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा R1, R2, R3 सब क्या है, सेम है आपका। R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है। Therefore 1 by R equivalent can be given as 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 प्लस 1 by 4, ये आ जाएगा आपका 4 by 4। सिंप्लीफाई करिएगा तो R इक्विवेलेंट आपका क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका 1 ओम है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 26। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए इज IRT, ऑप्शन बी इज I square RT, ऑप्शन सी इज IR square T, ऑप्शन डी इज IR by T। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, I square RT। So according to Joule's law of heating, heat is directly proportional to resistance. Heat is directly proportional to current का square. Heat is directly proportional to the time for which it is operated. यहाँ पर time आपका कैपिटल यूज किया गया है, ठीक है ना। तो आपका इसको कंबाइन करिएगा तो क्या आ जाएगा, heat is directly proportional to I square R into T, which is in option number B. So moving to our question number 27. The filament of electric bulb is made up of। तो फिलामेंट जो होता है आप देख सकते हैं, ये फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये क्या है आपका, ये जो गया है आपका 2 पॉइंट के बीच में, ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ऑप्शन नंबर ए इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी इज कॉपर, ऑप्शन सी इज मैग्नीशियम, ऑप्शन डी इज टंगस्टन। सो आवर राइट आंसर इज टंगस्टन। तो बेसिकली फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। So moving to our question number 28. Which of the following gases are filled in electric bulb? तो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस आपका फिल किया जाता है। ऑप्शन ए इज नियोन, ऑप्शन बी इज आर्गन, ऑप्शन बी इज हीलियम, ऑप्शन सी इज हीलियम, ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। Therefore our right answer is option number बी, आर्गन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या करते हैं, आर्गन को जनरली फिल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, सर्किट डायग्राम है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या है, सर्किट डायग्राम है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 29। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन rather than any other metallic wire because option A tungsten has high resistivity and high melting point, option B tungsten has low resistivity and low melting point, option C tungsten has low resistivity and low melting point, option D is high resistivity and low melting point। So our right answer is option number A, tungsten has high resistivity and high melting point। Basically filament of electric bulb is made of tungsten because of this reason only। Tungsten has high resistivity and high melting point। High melting point, we can say that its melting point is approx 3400 degrees Celsius। So moving to our question number 30। The coiling of filament is done। Option A is to increase the length and decrease the cross section area, option B is to decrease the length and increase the cross section area, both increase both decrease। So our right answer is to increase the length and to decrease the cross sectional area। So option A is our right answer। यहाँ देख सकते हैं आपका ये कॉइलिंग का एग्जांपल है। कॉइलिंग हम लोग कैसे करते हैं, कंडक्टर को इस तरह से कॉइल करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कॉइल करते हैं। इससे आपका क्या होता है,
तो क्वाइलिंग करने से आपका क्या हो जाता है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ओवरऑल हमारा क्या होता है, ओवरऑल हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करेंगे कम तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगेन लेंथ बढ़ाएंगे अगेन रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाए, इसीलिए हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो क्वाइलिंग इसी के लिए बेसिकली किया जाता है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 31, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए इज कॉपर, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इज नाइक्रोम। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। तो आपका हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन का बेसिकली नाइक्रोम का बना रहता है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 32, why inert gas like argon is used in electric bulb? Option number A is to avoid oxidation of filament and to other chemical reaction, to avoid reduction of the filament and other chemical reaction. Option C is both oxidation and reduction. Option D is none of these. So our here right answer is option number A, to avoid oxidation of filament and other chemical reaction. तो बेसिकली इनर्ट गैस आपका इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भरा जाता है फ्री स्पेस में, ताकि फिलामेंट का ऑक्सीडेशन ना हो या किसी भी अदर केमिकल रिएक्शन ना हो जब वो हीटेड हो। ठीक, नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 33। सो इन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाई कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर आर मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल? ऑप्शन ए इज ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी एंड ऑल्सो heat bearing capacity. Option B is due to low resistivity. Option C is due to low melting point. Option D is none of these. So here our right answer is option A, due to high resistivity and also heat bearing capacity. तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसका कॉइल जनरली किसका बना रहता है, जनरली उसका कॉइल एलॉय का बना रहता है जिसका हाई रेसिस्टिविटी होता है। रेसिस्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो हाई रेसिस्टिविटी होता है और हाई हीट बेयरिंग कैपेसिटी होता है, इसीलिए जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, एलओआई का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कॉइल को मेड करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द, option A is chemical effect of electric current, option B is magnetic effect of electric current, option C is heating effect of electric current, option D is none. Therefore electric fuse works on heating effect of electric current. So option C is our right answer. Moving to our next question, question number 35, why is mica insulation used for electric iron? Option A is mica is good conductor of heat and bad conductor of electricity. Mica is bad conductor of heat and good conductor of electricity. Mica is bad conductor of heat and electricity. Mica is good conductor of heat and electricity. So our right answer is mica is good conductor of heat and bad conductor of electricity. So option A is our right answer. Mica is good conductor of heat and bad conductor of electricity. इसी के कारण आपका इलेक्ट्रिक हीटर में आपका माइका इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको हीट ट्रांसफर हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपका कॉइल के थ्रू आपका मेटल प्लेट पर ना ट्रांसफर हो। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो आपको ये बोल रहा है कि टू रेजिस्टर्स हमारा कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि रेजिस्टर्स आपका क्या है, R1 है और दूसरा रेजिस्टर क्या है हमारा, R2 है। तो ये दो रेजिस्टर आपका कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में पहले कनेक्टेड है और उसका इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है आपका, R इक्विवेलेंट हमारा 10 ओम दिया हुआ है जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, जब ये कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपका है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स 2.4 ओम। जब इन्हीं टू रेजिस्टर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, R1 हमारा और R2 को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो उस समय हमारा R इक्विवेलेंट जो सर्किट का होगा वो हमारा क्या होता है, R इक्विवेलेंट इन पैरेलल हमारा वो हमारा है 2.4 ओम। ये हमारा क्या हो जा रहा है, 2.4 ओम आ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज 2.4 ओम। अगेन ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो आपसे आगे पूछ रहा है देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर। तो आपसे यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा।
तो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको केस 1 और केस 2 कर सॉल्व कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट में हम एज्यूम करेंगे कि जब हमारा रजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट इन सीरीज हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 ये वो हमारा 10 ओम दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम केस 2 के लिए लिखेंगे, जब ये पैरेलली कनेक्टेड है, केस 2 हम मानेंगे जब ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय R इक्विवेलेंट। तो हमारा लिख सकते हैं इसको 1 बाय R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा R इक्विवेलेंट 2.4 ओम है तो हमारा 1 बाय R इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 1 बाय 2.4 ओम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करके इक्वेशन 2 मार्क कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2.4 ओम, ये 1 बाय 2.4 ओम। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं कि R1 इंटू R2, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लिख सकते हैं, वो हो जाएगा आपका 2.4 इंटू R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2.4 इंटू R1 प्लस R2 का वैल्यू हमारे कितना है, 10 ओम के बराबर है, तो यहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 24 ओम, यानी R1 इंटू R2 हमारा क्या आ गया, 24 ओम आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 हमारा 10 ओम है इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा R1 इंटू R2 हमारा क्या है, 24 ओम है। अब हम क्या करेंगे, इस दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो इक्वेशन है, दो अननोन है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो R1 है वो क्या आ जाएगा, 24 अपॉन R2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू R1 का हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हम जानते हैं R1 प्लस R2 हमारा कितना है, 10 ओम के बराबर है। तो R1 हमारा क्या है, 24 अपॉन R2। नेक्स्ट हमारा R2 है इक्वल टू 10 ओम हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 10 R2। तो हम लिख सकते हैं इसको R2 का स्क्वायर माइनस 10 R2 प्लस का 24 इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर इसको लिख सकते हैं कि R2 का स्क्वायर माइनस 6 R2 माइनस 4 R2 प्लस 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा R2 का वैल्यू आ जाएगा R2 इक्वल टू 6 एंड R2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप हमारा दो वैल्यू आ जाएगा R2 का, कि R2 का वैल्यू 6 होगा और R2 का वैल्यू 4 आएगा। तो हम यहाँ पर फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो R2 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, और R2 का वैल्यू आ गया हमारा 4 ओम। तो हमारा ये दो वैल्यू है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें R1 निकालना पड़ेगा। तो R1 का फॉर्मूला यहाँ पर हम जस्ट इक्वेशन लिखे हैं कि R1 हम लिख सकते हैं 24 अपॉन R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 अपॉन 6, तो ये आपका आ जाएगा 4 ओम। यानी आपका R1 जब 4 ओम होगा तब हमारा R2 कितना होगा, R2 हमारा 6 ओम होगा। ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली जब हम R2 एज्यूम करेंगे 4 ओम, तो हमारा R2 कितना है, 4 ओम है। तो उस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, R1 निकालना पड़ेगा। तो R1 हमारा हो जाएगा 24 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 4, तो ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। देयरफॉर R1 इक्वल टू 6 ओम जब आपका R2 हो जाएगा 4 ओम। तो ये आपका सेम आंसर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो R1 का वैल्यू आपका 4 ओम है, R2 का वैल्यू 6 ओम है, या R1 का वैल्यू 6 ओम होना चाहिए, R2 का वैल्यू 4 ओम होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी। The advantages of parallel connection is option A, parallel circuits provide the same voltage to every source and appliances in the circuit, thus all appliances work efficiently. Option B, in parallel circuits, if one appliance is fused, the current continues to flow through the others. Option C is both A and B. Option D is none. So here our right answer is option C, both A and B.
So parallel circuit provides same voltage and every source in the appliance circuit work efficiently. तो जो भी आपका पैरेलल कनेक्शन में ऑपरेट करते हैं हम लोग, किसी भी बल्ब को या रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल लगाते हैं तो क्या होता है, उसके सेम पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ड्रॉप होता है, सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है और इस कारण से आपका वो एप्लियंसेस इफिशिएंटली वर्क करता है। नेक्स्ट, अगर पैरेलल सर्किट में किसी एक भी एप्लियंस फ्यूज हो जाता है तो करंट कंटिन्यूज करता है अदर एप्लियंसेस में। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following does not represent electric power? Option A is P equal to VI, P equal to I square R, P equal to V square by R, P equal to VR. So here our right answer is P equal to VR. यहाँ पर आप देख सकते हैं which does not represent बोल रहा है, तो पावर का हमारे पास तीन फॉर्मूला है, V into I। पावर का दूसरा फॉर्मूला है आपका I square R। पावर का आपका दूसरा फॉर्मूला है I square R। पावर का तीसरा फॉर्मूला है V square upon R। तो यहाँ बोल रहा है आपका does not represent, इसीलिए ऑप्शन नंबर टी होगा आपका। Moving to our question number 39. So question number 39. What is the commercial unit of electric energy? Option A is 1 unit, option B is kilojoule, option C is kilowatt hour, option D is A and C. So here our right answer is option D, both A and C. तो जनरली इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, हम लोग उसको 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो कमर्शियल यूनिट क्या है आपका, किलोवाट आवर है या 1 यूनिट। तो बेसिकली ये भी है और किलोवाट आवर भी है, तो यहाँ पर आपको बोथ ए एंड सी है ऑप्शन नंबर डी में। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 40। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, तो आपको पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ कंडक्शन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए इज ओम, ऑप्शन बी इज मो, ऑप्शन सी इज रो, ऑप्शन डी इज नन। सो हियर आवर राइट आंसर इज मो, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस का आपका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हम लोग का ओम होता है, जिसको हम इस ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है आपका कंडक्टेंस, देयरफॉर 1 by R is known as कंडक्टेंस। तो 1 by ओम को हम लोग क्या लिखते हैं, उल्टा कर मो लिखते हैं, देयरफॉर कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया, मो हो गया। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 41। Amount of energy delivered by a power of 1 kilowatt in 1 hour is called. Option A is watt hour, option B is kilowatt second, option C is kilowatt hour, option D is none. So here our right answer is kilowatt hour. So power क्या है आपका, पावर यूज किया गया है आपका 1 किलोवाट फॉर 1 आवर यूज किया गया है। तो हम जानते हैं हमारा पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, देयरफॉर एनर्जी कैन बी गिवन एज पावर इनटू टाइम। तो पावर का आपका कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट होता है, और टाइम का होता है आवर। तो आपका 1 यूनिट जो होता है पावर 1 किलोवाट और 1 आवर यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 42। An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current of 0.50 ampere is flowing through the bulb. Then find out the power of the bulb. So इस केस में आपको पावर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो भी गिवन है हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, therefore V is given 220 वोल्ट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, करंट दिया है, जनरेटर से जो डिलीवर्ड कर रहा है आपको करंट दिया हुआ है जो 0.50 एम्पियर है आपका। therefore power can be given as V square by R. Power can also be given by V into I and power can be also given by I square R. तो अब हमारे पास पावर का 3 फॉर्मूला है। अब बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें पावर का ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें हमें मैक्सिमम चीज गिवन है, हमें पावर पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट गिवन है। therefore पावर कैन बी गिवन एज V into I। V हमारा क्या है 220 into I क्या है आपका 0.50। तो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 22 into 5, तो ये आपका आ जाएगा 110 वाट। W से डिनोट किया जाता है, therefore पावर फाइनली कैन बी गिवन एज 110 वाट। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका 110 वाट, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 43।
If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged. The increase in the power dissipation can be given by, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आपका गिवन है, करंट थ्रू द रजिस्टर। मान लीजिए आपका एक रजिस्टर है, ये हमारा क्या है, रजिस्टर्स है, इसके अक्रॉस करंट हमारा दिया हुआ है, इनिशियली वो आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम दैट करंट आई इज फ्लोइंग इनिशियली थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो आपका करंट क्या हो गया, करंट आई थ्रू रेजिस्टर इज इंक्रीज बाय 100%। तो इनिशियली हमारा क्या करेंगे, हमें पावर निकालना है। तो हमारे पास पावर का अगेन 3 फॉर्मूला है। हम लोग पावर किससे देते हैं, पावर कैन बी गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर, पावर कैन बी गिवन एज आई स्क्वायर आर, एंड पावर कैन ऑल्सो बी गिवन एज वी इंटू आई। तो यहाँ पर हमें कहीं भी करंट और रेजिस्टर्स का रिलेशन दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस का नहीं दिया गया है। तो हमें ये फॉर्मूला रिजेक्ट कर देंगे जहां पावर को पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेट किया जा रहा है। तो हम लोग यूज करेंगे पावर कैन बी गिवन एज आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रेजिस्टेंस के बारे में बात किया गया है, करंट भी हमारा दिया गया है कि करंट हमारा 100% इंक्रीज हो गया है। तब हम लोग यहाँ पर केस एज्यूम करेंगे। केस फर्स्ट में हमारा इनिशियली क्या हो जाएगा, इनिशियली पावर जो होगा P1 जिसको हम डिनोट करते हैं वो हो जाएगा हमारा I1 का स्क्वायर इंटू R1। हमारा R1 R2 हमारा सेम है जो कि R के बराबर है। हमारा R1 और R2 हमारा क्या है, R के बराबर है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं किए हैं। देयरफॉर P1 हमारा क्या आ जाएगा, इनिशियल पावर जो P1 हो जाएगा हमारा I स्क्वायर इंटू R आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इनिशियल पावर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका केस 2 हम लोग बनाएंगे। केस 2 में हमारा क्या हो गया, केस 2 में हमारा अब क्या हो गया, करंट हमारा 100% इंक्रीज हो गया। देयरफॉर हमारा I2 क्या हो जाएगा, न्यू करंट हो जाएगा I प्लस 100% ऑफ I, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स 2I हो गया, ठीक है ना। ये आपका 2I आ जाएगा। तो हमारा I2 क्या आ गया, I2 हमारा 2I आ गया। यहाँ I हमारा इनिशियल करंट है। देयरफॉर हम पावर निकालेंगे P2 कैन बी गिवन एज I2 का स्क्वायर इंटू R2। हमारा R1 R2 तो सेम है और I2 हमारा क्या है 2I का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4I स्क्वायर R। तो ये क्या आ गया आपका, पावर 2 आ गया, 4I स्क्वायर R। तो हमसे क्या पूछा है, इंक्रीज इन द पावर डिसिपेशन विल बी, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्रीज आपसे पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आपको इंक्रीज निकालेंगे सबसे पहले। देयरफॉर इंक्रीज्ड इन पावर कैन बी गिवन एज P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल आपका P2 है जो कि 4I स्क्वायर R है आपका, माइनस I स्क्वायर R। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3I स्क्वायर R। Therefore, increase in power equal to 3I square R. Therefore, percentage increase can be given by increase in power upon initial power into 100%. Therefore, increase in power क्या है आपका 3I square R। नेक्स्ट हमारा इनिशियल पावर हमारा क्या है, इनिशियल पावर हमारा है I स्क्वायर R इंटू 100%। तो ये I स्क्वायर R कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 इंटू 100 आ गया परसेंट। तो ये हो गया आपका 300%। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, हमारा पावर में जो इंक्रीज हो गया परसेंटेज इंक्रीज इन पावर क्या हो गया आपका, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर हमारा आ गया 300%। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 44। An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? तो आपको गिवन क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास दिया गिवन है पावर, इलेक्ट्रिक केटल का पावर गिवन है आपका 1 किलोवाट। तो हम क्या करेंगे 1 किलोवाट को कन्वर्ट कर लेंगे।
1 किलोवाट को हम लोग क्या कर लेंगे, वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 किलो क्या होता है, 10⁻³ वाट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट हमारे पास गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि फ्यूज का रेटिंग क्या होगा, यानी फ्यूज का करंट रेटिंग आपका क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पावर का हमारे पास 3 फॉर्मूला है। पावर कैन बी गिवन एज I²R, पावर कैन बी गिवन एज V into I एंड पावर कैन ऑल्सो बी गिवन एज V²/R। तो आउट ऑफ दीज 3 फॉर्मूला हम देखेंगे हमें गिवन क्या है, वो फॉर्मूला हमें यूज करेंगे। हमारे पास पावर गिवन है, नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और हमें करंट पूछ रहा है। तो फॉर्मूला नंबर ये हम 2 यूज करेंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम चीज हमें गिवन है। पावर हमें गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें करंट पूछा गया है। कहीं भी हमें रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया है तो हम ये फॉर्मूला दोनों नहीं यूज करेंगे। Therefore power can be given as V into I. Therefore I can be defined as P upon V. P हमारा क्या है, 10⁻³ वाट है। नेक्स्ट हमारा V क्या है, 220 वोल्ट है। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000/220। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये अप्रॉक्स आपका 4.545 एम्पियर आ जाएगा। Therefore करंट रेटिंग आपका फ्यूज का क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स आपका 5 एम्पियर रेटिंग होना चाहिए। तो दिस इज शोन इन ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 एम्पियर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 45। सो इन 45 वी हैव मैच द फ्लोइंग। एक तरफ आपका क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है, दूसरी तरफ उसका क्या दिया है, एसआई यूनिट दिया है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट करते हैं। तो करंट का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, करंट का हमारा एसआई यूनिट एम्पियर होता है। तो आपको एम्पियर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट किसको मैच करेगा, एम्पियर को मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। आपका पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो वाट कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, ये वाट से मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। और पोटेंशियल डिफरेंस का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपका वोल्ट कहाँ है, यहाँ ऑप्शन ए में है, यहाँ पर वोल्ट। तो वोल्ट को ये मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस, कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। तो रेजिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का आपका एसआई यूनिट ओम होता है। तो ये ओम को मैच करेगा एसआई यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो हमारा रेसिस्टिविटी को डिनोट करता है। तो रेसिस्टिविटी का आपका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर आपका क्या है, यहाँ पर है, आपको ओम मीटर लास्ट ऑप्शन को मैच करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्ज। चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम होता है। कूलम आपका यहाँ पर कूलम से मैच हो जाएगा चार्ज का एसआई यूनिट। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।